etc., etc. Do you feel that in the absence of such a provision in Maharashtra, you are getting handicapped? And if so, in what manner do you think the members of the public who ultimately want this act to be effective can... No, this is not a good thing. I hope so, and do believe that that's not the case. But what would you, according to you, will be... We don't have any police unit under us, but as I told you, we have a right to take help of any police officer in the state to investigate the allegations made before us against any public servant. And for that, we don't require anybody's help, permission in advance. We can directly, so we are issuing directions to the ACB. But you see, having your own unit headed by some senior officer like DCP or DIG makes a lot of difference, because directly the unit is attached to your office and they have got their papers, everything in the effectively supervise the functioning of Anti-Corruption Bureau, and we can make it more effective, because there are delays in recording FIR, there are delays in investigation, there are delays in grant of sanction to prosecute. Now this Mr. Subtankar knows, if any public servant is to be prosecuted by ACB, he has to take sanction from the appointing authority to file charge sheet. Right? Now if any engineer of BMC is to be charge sheeted in the court for a corruption case, he has to take sanction from the commissioner, municipal commissioner. That Mr. Subtankar knows. Somebody is from government to be charge sheeted, he has to, ACB has to take sanction from the chief secretary. So we have highlighted that there are delays in FIR, investigation, sanction, filing charge sheet, then trial and conclusion of the trial. So on an FIR which is registered maybe on 1st of January 19, you can say 2005, it comes to conclusion in the trial court maybe in 2020. Don't get surprised, it's a fact I am telling you, I was CBI judge. So in the FIR... Correct. Why is disciplinary action not initiated suo moto when the matter is not closed within 45 days? These are the questions we have been asking since independence, and there is no answer. I will ask you this question, you will not be able to answer. It is, you see, we have failed. As institutions, we have failed, and we are not bothered about the failure of the institution. That is the whole headache. If I am located because I have to work. I must realize that I have to work for the people. I am appointed by the people. Look, Ayukta means the person appointed by the people. Unless I realize this, process, competency, there are so many issues which I cannot discuss with you on public platform. Honestly speaking, that lawyer knows it. Outstanding performance and innovation. The jury of this
Honorable Justice Shri M.L. Talyani has taken the session on Lokayukta in a very well manner, simple manner, and really interactive session. All of us came to know about how to tackle with the allegations and grievances with the Lokayukta. Sir, we really thank you for taking such a good interactive session in very simple manner, and we also appreciate the efforts of the Resident Welfare Association President Shri Sultan and Secretary Shri Ramesh Prabhu, CA Sailesh Gedia. We thank you. We also thank you all the jury members present over here, and I on behalf of the association thank you and request all of you to carry this vote of thanks with loud applause. Thank you. On behalf of all our members, we announce the arrival of the Minister of Union Minister. Trustee B.T. Srinivasan, please come on the dais. Sharad Kumar, Colonel Tyagi. Let us welcome with a round of applause Honorable Minister Hardeep Singh Puri. We are honored today that this entire 2 days conference has been conducted under the advice guidance of Hardeep Singh Puri, who is Honorable Union Minister, Independent Charge for Housing and Urban Affairs. So, it is our privilege that for the first time in Western India, this conference is being held for the 5th time. The earlier 4 conferences are in South and North this time, and we thought it should have in the Western. And last time the conference was honored by Venkaiah Naidu ji, at that time Union Minister, Housing and Urban Affairs. Today we are again having a minister with us, and first time we have declared a real estate award also in addition to resident welfare. So we on behalf of everybody, including Kirit Bhai, who is the local MP, we welcome you, Shailesh Bhai Gedia and all the dignitaries, Uttangar sir, Sharad Kumar, who is the co-host with Maharashtra Society Welfare Association, and of which I am also the president. Thank you very much. B.T. Srinivasan, who is the senior vice president of the Korwa, is here. Colonel Tyagi, convener of this program. Yes, I request him now to welcome the minister, and then we will have the next award function. Thank you. 5वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस RWS की तरफ से, उसके संयोजक होने की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और कोरवा यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ RWS के तमाम सदस्यों की तरफ से और महासेवा यानी महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम सदस्यों की तरफ से और अग्नि के तमाम सदस्यों की तरफ से माननीय हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर किरीट सोम्या जी का, माननीय किरीट सोम्या जी का और तमाम जितने भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं उन सब का, और उनके पीछे जो जूरी और जो हमारे डेवलपर्स बैठे हैं उन सब का, और उन सबसे ज़्यादा जो अवार्ड विनर्स हैं और आप सामने हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कोई पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री सुल्तानकर सर से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंडिया को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और ये भी अनुरोध करते हैं कि 5वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए एक सॉविनिर भी रिलीज करें।
अरे भाई एक हो गया तो हो ना साइड में। हट गया यार। अभी क्या लेंगे मित्रों, कोई पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता, मगर इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी। 1000 मील की यात्रा भी डिमांड और 2 एडवाइजरी और 2 रिक्वेस्ट बहुत एक लाइन में रखना चाहता हूँ। डिमांड तो सबसे पहले ये है कि RWS को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाने चाहिए, संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। चाइना एक मायने में हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है। चाइना के अंदर RWS को रेजिडेंट कमेटी कहा जाता है और उस रेजिडेंट कमेटी का 30% जो बजट है उसको गवर्नमेंट देती है। उनको सोशल एडजुडिकेशन के पावर है। हमारा अनुरोध है कि इस बारे में थोड़ा कंसीडर किया जाए। हमारा दूसरा डिमांड है वो है कि 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद जब डायरेक्ट पैसा पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को छोड़ के म्युनिसिपैलिटीज को जाने लगा तो उसके 2 कंपोनेंट बनाए गए, मेन कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट। 80% मेन और 20% जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट था, जिसके अंदर जिम्मेदारी थी कि सभी नगर निगम अपने रिसोर्स को जनरेट करने और सर्विस लेवल बेंचमार्क को स्थापित करने की जानकारी दें, जो करीब करीब हिंदुस्तान के किसी नगर निगम ने नहीं किया। लिहाजा वो 20% परफॉर्मेंस ग्रांट RWS को दे दी जाए। हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं। ये 2 तो हमारे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2 एडवाइजरी के लिए एक लाइन में सर। एक पहली हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स को, सभी म्युनिसिपैलिटीज को एक एडवाइजरी जारी की जाए कि वो QRT टीम कल्चर एस्टेब्लिश करें। QRT का मतलब क्विक रिएक्शन टीम। कहीं पे सड़क टूटती है, उसके बाद में वो इंतजार करते हैं पूरी सड़क टूटेगी, फिर सड़क बनाते हैं। कल्पना कीजिए एक गाड़ी है, उसमें हीटिंग कॉइल्स है, बिटुमन है, स्पेयर एग्रीगेट है, 1-2 उसमें डेडिकेटेड ट्रेड्समैन है। अब कहीं पॉट होल बनता है तो तुरंत एक RWS का आदमी उनको रिक्वेस्ट करता है, वो गाड़ी वहां पे आके पॉट होल को भरती है, पॉट होल बड़ा होने से बच जाता है। सड़क की रिपेयर से नई सड़क बनाने की संभावना काफी दिनों तक चल जाती है। इसको कहते हैं क्विक रिएक्शन टीम। ये सड़कों में हो, सीवेज ट्रीटमेंट में हो, स्ट्रीट लाइट में हो। हमारा सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो नई डायरेक्शन में सोचने से होते हैं। अगर कोई नगर निगम ये कहे कि हम गरीब हैं तो ये टोटल गलत है। पहली बात तो उनके पास बहुत सारे सोर्सेज है, ना भी हो तो एक मैं बताता हूँ, और वो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। सभी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अब ये सुविधा उपलब्ध है कि नगर निगम अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को वहां पे लिस्ट कर सकते हैं। RWS उन्हें मदद करेंगे उनके म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बिकवाने में। उससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, पैसा आएगा और हर सिटी का विकास हो सकता है। सब छोटी छोटी 2 रिक्वेस्ट, आधी लाइन की। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि रेरा के बारे में हमको एक मिलने का समय दे दिया जाए, और दूसरी फाइनल रिक्वेस्ट ये कि हम ये चाहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कोरबा का एक्स ऑफिशियो पैटर्न बनने की अनुमति दे, और हम अपनी तरफ से आधा सेशन और वो ये कि मित्रों ऐसा नहीं मेरा RWS, मेरा बम्बई, मेरा गाजियाबाद, नो, हम पहले देश की सोचते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज से हम एक और संकल्प लें कि हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सबको कुछ समय के लिए इज्जत के साथ अवकाश देकर आपके अभिवादन में, म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में अगर जय हिंद बोलें और जय हिंद बुलवाएं तो देश की एकता भी बढ़ेगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार खड़े हो प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से आपकी अभिवादन में जय हिंद बोलेंगे और जय हिंदी बुलवाएंगे। हिंदू हो या मुसलमान, देश में रहना है तो देश की जय बोलनी होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
since I am not just minister to deal with Swachh Bharat, and I also have a few other flagship programs, so I want to spend a minute or two on the some latest developments that have taken place. कोई करीब 2 महीने पहले जब मैं पिछली बार मुंबई आया था तो नोरेटको ने एक फंक्शन किया था। उस समय ग्रामीण भारत प्रधानमंत्री आवास योजना पे कुछ चर्चा हुई थी, and I had unveiled 8 possible models for construction of housing under the Pradhan Mantri Awas Yojana, 6 of them involving private land and 2 involving 6 of them involving government land and 2 involving private land. मुझे बहुत खुशी है कि उस समय से अब तक कुछ और हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं। पिछले हफ्ते कैबिनेट में ये निर्णय किया गया कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसका MIG 1 और MIG 2 का जो कारपेट एरिया है वो 90 स्क्वायर मीटर और 110 जो था स्क्वायर मीटर उसको बढ़ा के 120 और 150 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे कुछ जो मिडिल इनकम ग्रुप में थोड़ी सी मूवमेंट स्लो थी, तेजी नहीं थी, उसमें आ जाएगी। आपको ये तो ज्ञान होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसमें 3 सेगमेंट्स है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप का जो सेगमेंट है ये प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर 2016 को ही इंट्रोड्यूस किया था और ये
कई स्टेट्स में चुनाव होने के कारण और कारणों से ये जो स्कीम है ये थोड़ी मई से ही चालू हुई है। EWS और LIG में हमने जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है उसमें ऑलरेडी 1300 करोड़ सब्सिडी पे हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया था, और क्योंकि वहां पे कमी पड़ रही थी तो हमने यहाँ से 400 करोड़ की स्कीम से लेके MIG से वहां ट्रांसफर किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वित्त मंत्री जो हमारे मित्र हैं वो हमारे को इसको रिप्लेनिश कर देंगे। पर ये जो MIG स्कीम है इसमें मैं समझता हूं कि जो पहले की भी इन्वेंट्रीज हैं जो फ्लैट बने हुए हैं इसमें एप्लीकेंट्स इसके लिए बैंक से अप्लाई करके और क्रेडिट लिंक सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं। और ये स्टेप्स हैं, कई और स्टेप्स दिए गए। रेरा तो है ही, मैं कई बार कह चुका हूं कि जब हिंदुस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 2 सेगमेंट होंगे, प्री रेरा, पोस्ट रेरा। और अब मुझे पता है हमारे कुछ मित्र जो है बिल्डर्स, उन्होंने रेरा को चैलेंज किया है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट्स और बाकी लोगों में इसमें जो रेरा के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी तरीके से मीट होंगे। आज सुबह ही मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो एक पॉलिटिकली एक्टिव लीडर है हमारे पार्टी के, नहीं किसी और पार्टी के, उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेरा के कारण बायर्स को 1700 करोड़ का जो बायर जो विक्टिम्स थे उनको इसका फायदा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रेरा और बाकी जो कदम लिए गए हैं, फिस्कल इंसेंटिव्स जो पिछले 2 बजट में दिए गए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को स्टेटस जो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया गया है, GST और बाकी स्टेप्स, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें काफी सुधार होगा। आई वॉन्ट टू बी केयरफुल विद माई वर्ड्स। मैं ये नहीं कहना चाहता कि टोटल क्लीन अप होगा, क्योंकि जिसको भी रियल एस्टेट के साथ थोड़ी भी अंग्रेजी में कहते हैं नॉडिंग एक्वेंटेंस, थोड़ा भी ज्ञान हो, आपको पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पूरी एकदम तो नहीं होगा सुधार, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने कुछ क्वार्टर्स में एक तो जो मार्केट की वैल्यूएशंस हैं इन प्रॉपर्टीज की ये ज्यादा रियलिस्टिक होंगी, और जिन बिल्डर्स ने जिनके एक्शंस जो हैं वो बायर्स को एडवर्सली हार्म किए हैं, जो क्रिमिनल एक्शंस है उस पे वी विल गेट क्लैरिटी, और इसमें कंसोलिडेशन सेक्टर में होगी। तो मैं इसके अलावा आपको एक और आज मेरा प्लान था कि थोड़ी स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करते, पर मैंने जितना मैं चाह रहा था उससे ज्यादा बोल गया हूं, और आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, बट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। गांधी जी ने जब सत्याग्रह शुरू की थी तो जो उसके वर्कर थे उनको सत्याग्रही का ये टाइटल दिया गया है। मैं समझता हूँ आप और मैं भी आप शामिल करना चाहूंगा। अब जो स्वच्छ भारत आंदोलन में लगे हुए हैं, आप सबको हमें स्वच्छ प्रणाम करना चाहिए और हमें अपने आप को स्वच्छग्रही करना चाहिए। तो मैं सब स्वच्छग्रहियों को, RWS को बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मुकेश पटेल नीलकंठ गुट के आए हैं, जो थोड़ा लेट आए, उनको अवार्ड। किधर मुकेश भाई? और विनोद संपत जी, आपने आज जो बुक लिखा है हमने उनको वुमेन फोरम के बाजी का जो स्टॉल है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं किरीट सोमय जी को और पुलिस सर को, जल्दी आइए। और एडवोकेट विनोद संपत जी को एक मोमेंट तो बीजेपी के लीगल हेड है, एडवोकेट संपत अमित मेहता जी। मैंने कहा था ना तो भाई कहा था नियर रोड में पड़ा हुआ यार है। अभय उपाध्याय जी, या वो अभय उपाध्याय उधर है ना, आ रहा है यार, आ रहा है, नहीं आ रहा है। या सुनीता गुड़बड़े जी प्रेजेंट करिए। जो जूरी का अध्यक्ष है हमारा साउथ सर, प्लीज।
अभय उपाध्याय, यस कंज्यूमर के लिए फाइट कर रहे हैं। रोलिंग ओनली आउटस्टेशन पीपल प्लीज। एक मिनट जरा रुकिए ना। एक मिनट ओके सर। नहीं, लेट मी स्टार्ट एट द बिगिनिंग। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की है, इसमें मैं आप आ सका। काइंडली कलेक्ट योर साउनेट, आपका साउनेट लीजिए, and then who have not got the bag yesterday, kindly collect the bag also. Down. इधर आवाज चलता रहने वाला। जो हमारी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने के कुछ ही दिन बाद मैंने सब RWOs को एक चिट्ठी लिखी थी और उनको ये रिक्वेस्ट किया था कि जो वेस्ट है इसको पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे सेग्रीगेट किया जाए, मतलब ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एट्सेट्रा। और मुझे बहुत खुशी है कि ये वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट और सब एरियाज़ में RWOs बहुत अच्छा काम कर रही है। आज ये जो मीटिंग है इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये जो स्वच्छ भारत का जो आंदोलन है, जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिसकी शुरुआत की थी, वो इसका जो कंक्लूजन जो है, जो महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी अक्टूबर 2019 में करना है, इसके जो फिज़िकल टारगेट्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उससे बहुत पहले ही हम लोग उनमें सफलता पा लेंगे। कई और काम करने हैं, माइंडसेट और लाइफस्टाइल चेंजेस। अभी ये तीसरी एनिवर्सरी पे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अब ये जो इसके बारे ज्ञान है, क्या करना है, और लोगों में इसमें एक दिलचस्पी आ गई है और इस पर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने कैबिनेट में कुछ और निर्णय लिए हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो इसका मिडिल इनकम ग्रुप है MIG, उसमें MIG 1 और MIG 2 में कारपेट एरिया जो है MIG फ्लैट्स का, वो 90 और 110 स्क्वायर मीटर हुआ करता था। अब उसको बढ़ा के कारपेट एरिया को 120 और 150 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। LIG और EWS में तो क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी स्कीम है वो वैसे काफ़ी तेज़ी से उस पर डिमांड थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी MIG के जो कारपेट एरिया बढ़ाने में, इसमें ये जो MIG स्कीम अभी नई शुरू की है, इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसंबर 2016 को की थी और वास्तव में ये मई 2017 में स्कीम चालू की गई है। इसमें जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम पे की डिमांड है वो यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में और बाकी क्षेत्रों में ये काफ़ी बढ़ेगी। रेरा को लेकर जो मैं रेरा के बारे यही कहना चाहता हूँ कि जब इस सेक्टर का इतिहास लिखा जाएगा तो 2 फेज़ होंगी, प्री रेरा और पोस्ट रेरा। अभी जो आप थोड़ी कंप्लेंट सुन रहे हैं वो उन कैटेगरी में है जहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने रेरा को अडॉप्ट करने समय जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उसकी परिभाषा पे कुछ उन्होंने ट्वीकिंग किया है, पर ये कोर्ट्स प्लस बाकी जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, मुझे लगता है इस सेक्टर में सुधार आ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि रियल एस्टेट पे क्या समस्याएं थी। GST के आने से अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से, बजट में कुछ हमने फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, तो अब ये मार्केट प्राइस करेक्शन होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेरा के अनुसार नया प्रोजेक्ट में तो गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि नए प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि जो पैसा कलेक्ट किया जाता है बायर से 70% वो उसी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हो सकता है। पहले जो हुआ है उस पर अब कोर्ट्स भी एक्शन ले रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला है। पहले हुआ क्या कि कुछ बिल्डरों ने, जो बाकियों को भी बदनाम कर रहे हैं इस प्रोसेस में, उन्होंने बायर से पैसा लेके और कहीं और डाइवर्ट कर दिया है
पर इसका तो जो सुधार है, रेरा में जो प्रोविजंस हैं वो तो यूज़ करेंगे कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स, पर इसका कुछ इसमें तो क्रिमिनल एक्शन भी बनती है। सर एक फाइनल क्वेश्चन है, जो कि अभी मूडीज का रिपोर्ट आया, इससे पहले वर्ल्ड बैंक का भी आया था। सिर्फ मूडीज और रेड बैंक ने कई और रिपोर्ट्स हैं, एक प्यू रिसर्च सेंटर। देखिए ऐसा है, जो 3 साल में मोदी सरकार ने काम किया, आप एक पिक्चर ले लो बिफोर और आफ्टर। पहले कितने 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर सड़क बनी है, उसके बाद कितनी बनी है, टॉयलेट्स पहले कितनी बनी है, बाद में कितनी बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हो रहा है। अब आप मेरे सेक्टर को छोड़िए, बाकी जाइए, टेलीफोन। पहले जब मैं संयुक्त राष्ट्र में भारत को रिप्रेजेंट करता था, मैं एम्बेसडर था, उस समय हम टेली डेंसिटी की बात करते थे तो हम कहते थे कि शायद 20% है, 30% है। अब जितने भारत में नागरिक हैं उससे ज़्यादा टेलीफोन्स हैं, मोबाइल टेलीफोन, समझे ना। तो मेट्रो, अभी हमारे पास ऑलरेडी 400 किलोमीटर के मेट्रो है, हम 400-500 किलोमीटर और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए काम तो दबा के हुआ। सिर्फ हुआ क्या कि जो भारत के अंदर कुछ हमारे जो मित्र हैं, जो जिनकी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे फंसा हुआ है थोड़ा सा, उनको तो ये तरक्की बिफोर और आफ्टर की शायद ज़्यादा आसानी से नहीं नज़र आती है, पर हमारे देश के बाहर है। वर्ल्ड बैंक ने 40 पोजीशन एक गो में, 30 नहीं, कुछ में और 32 पोजीशन रहा नहीं, शुरू से देखें आप 2013 से तो लेकर 40 पोजीशन, 40 पोजीशन गेन एक कंट्री ने किया, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक को तो एक तरफ छोड़िए, इसमें इसका असर ईज ऑफ लिविंग में भी होता है, हर एक चीज़ में। अब क्या हुआ, उसके बाद ये आई है रिपोर्ट जो मूडीज़ की। मूडीज़ ने 14 वर्ष बाद हमारा जो स्टेटस है अपग्रेड किया। नॉर्मली मूडीज़ के बारे जब चर्चा होती है तो दूसरे डायरेक्शन में होती है, जो नीचे लाते हैं, पर इस बार ही उन्होंने रेस किया। उसके बाद एक प्यू रिसर्च है, उन्होंने भी ये एक रिपोर्ट आई है। ये सब डेवलपमेंट्स कोई 10-12 दिन के बीच हुई हैं, इसलिए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि काम दबा के हो रहा है। मोदी जी की जो लीडरशिप है उस पर भारत के दक्षिण में, उत्तर में, वेस्ट, सब जगह उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत हाई है। और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, उनमें जो इश्यूज हैं लेके जो सबसे वो महत्वपूर्ण समझते, उस सब पे मोदी जी की जो रेटिंग उन्होंने की है ये बहुत ही हाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो मेरा प्लेन मिस हो जाएगा। आई विल मिस द प्लेन। थैंक यू सर।